Okay, very good afternoon to all of you. Beta, good evening to all of you. Beta, we have started with periodic table, and in periodic table, what all thing we have done, beta? This side we call it as which block element? S block. This side we call it as P block, right? And middle one we call it as which block? D block. And below we have what? F block. This what was the general configuration for this NS1 or 2? For this it is NS2, NP1 to NP6. And we have done for D block also, and as for F block also. Then we have studied in particular period what how many elements are there and why particular period how many so many elements are there, right? Then we have studied atomic size and the factors affecting atomic size. Then we have studied with what beta? Ionization. Look, this we have done beta. All this thing we have done this atomic size and ionic size. This is done. Then ionization potential also we did. What we studied in ionization potential across the period, it increases. Down the group, it decreases. It is the energy required to remove an outermost electron. Remember? Acha. Then beta, we have done here two things. Remember? Across the period, it should what beta? Decrease, na beta? So lithium, beryllium, boron increase, right? Lithium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. But यहाँ पे क्या होता था? Remember, beta, we have done this. Give reason. Beryllium is more and nitrogen is more. Why beryllium? Because it was 1s2, 2s2, completely filled, right? Completely filled as more, na beta. For boron, it was 2s2, 2p1. So this is incompletely filled. For nitrogen, why it was more? Remember, beta, atomic number is 7. So 2s2, 2p3. 2p3 होता तो half filled होता था कि नहीं बोलो? So half filled has more ionization enthalpy. Whereas oxygen, it is 1s2, 2s2, 2p4. It is incompletely filled. Same trend you will see in what beta? Third period. Third period में किसका ज्यादा होगा? Magnesium will be more than what? Aluminium. बस यहाँ पे 2s2 के बदले 3s2 आएगा बेटा. एंड हियर नाइट्रोजन के जगह पे कौन आएगा? फॉस्फोरस. और यहाँ पे ऑक्सीजन के जगह पे कौन आएगा? सल्फर. तो फॉस्फोरस विल बी मोर. Remember this we have done. Now today we are going to study about electron affinity. What is electron affinity? Acha, if I remove electron, I have to supply energy. But if I add electron, then what will happen, beta? Energy will be released. Why it will be released, Zoya? Do you have any idea, beta? Look, chlorine के अंदर मैंने electron add किया. So chlorine was what? 287. And this will become Cl1 minus to form an ion. So it will become 288. Who is more stable, Zoya? Tell me. किसका To state complete है? Cl minus. So this is more stable. And we have studied higher the stability, lower will be the energy. Therefore, this will have low energy or not, tell me. And this was having more energy. So energy गायब हुआ, मतलब that energy will be released or not during this process. So electron affinity is what beta? Energy released when an electron is added to isolated gaseous atom to form an anion. Now we have to study what will happen to electron affinity across the period and down the group. अच्छा, ये डाउन द ग्रुप बेटा क्या हो रहा है बोलो? साइज बढ़ता है कि नहीं बोलो? कैन यू सी? नाउ आई हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. who will accept the electron easily? Where this blue electron is closer to the nucleus, the above one or the below one, tell me. Above. हाँ, तो यहाँ पे जल्दी जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर. एंड हियर इलेक्ट्रॉन अच्छा, हम लोग ना बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं. हियर वी आर गोइंग टू यूज इट एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, ये याद रखना. इन 10th वी यूज्ड टू यूज फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट वहां पे हम लोग ने 12th 11th में व्हाट वी स्टडी? आयनाइजेशन एंथैल्पी. Here, instead of electron affinity, what word we are going to use? Electron gain enthalpy. So down the group, what will happen, beta? Down the group, here down the group, electron affinity will be what? Less, Decrease. na beta? Above it is more or not? अरे where electron is more closer to the nucleus? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये आउटर वाला मत देखना जो बाहर से मैं ऐड कर रहा हूँ. So down the group, electron affinity decreases. Here it is less and here it was more. Electron gain enthalpy. Now you tell me across the period, what happens across the period? Size is decreasing. Can you see? So if I want to add this electron, इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है. Where it is closer to the nucleus? On the left hand side or the right hand side? Tell me. Come on. Right hand side.
So across the period, electron gain enthalpy, here it will be more and here it will be less. Understood? Just like ionization enthalpy only. But electron gain enthalpy is what, beta? Energy released. So this energy released, okay, electron gain enthalpy. It is what? Energy released. So it is what? Exothermic. But sometimes it may be what? Exothermic मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? Delta H will be what? Positive. But sometimes it is what? But sometimes it can be endothermic. So you'll ask, sir, how it can be endothermic? Right? This will come to your mind now, beta. Acha. Oh, sorry. Oh, ये कब होगा? अच्छा, noble gases, helium, neon, they are stable or not? Tell me, beta. Yeah. तो will they accept electron बाहर से? नो ना बेटा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को अंदर जबरदस्ती डालना पड़ेगा, मतलब मुझे धक्का मार, मतलब आई हैव टू सप्लाई एनर्जी. तो अभी वो मैंने बोला था ना, एंडोथर्मिक किसके लिए होगा? फर्स्ट इट विल हैपन फॉर व्हाट? नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो मुझे फोर्सफुली, मतलब बाय सप्लाइंग एनर्जी आई लैंड. फॉर नोबल गैसेस इट इज व्हाट बेटा? एंडोथर्मिक. ओके. अरे यार, ये मेरे को क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अरे यार, इरेजर आ जा. एक्सोथर्मिक में बेटा इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी. एंड एंडोथर्मिक में इट विल बी व्हाट? पॉजिटिव. फॉर नोबल फॉर whom all electron gain enthalpy will be positive? For noble gases. Secondly, अच्छा बेटा अभी थोड़ा सोचो. मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, तो क्या बन जाएगा? Cl1-. तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं बेटा, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी, ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो डेल्टा एच ई, ये फर्स्ट मतलब जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो मेरा इसका वैल्यू क्या आएगा? टेल मी बेटा. एनर्जी रिलीज ना, तो इसका एनर्जी विल बी लेस, इसका विल बी मोर. आर यू गेटिंग? तो लेस माइनस मोर, सो आई विल गेट नेगेटिव आंसर. अच्छा, अभी मैंने क्लोराइड के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा बोलो? ए, ये भी क्या है बोलो बेटा? नेगेटिव. ये भी नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव ये इसके पास में आएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा कि नहीं बोलो बेटा? अरे नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट और रिपल. टेल मी मिहिका, एम आई ऑडिबल? Yeah, they repel. दे रिपेल. तो ये अंदर जाने वाला है क्या? नहीं ना, तो मुझे इसको भी वापस जबरदस्ती डालना पड़ेगा, ऐसा फोर्स अप्लाई करके. So then it will become Cl-. अच्छा, तो ये this is my which electron gain enthalpy? If I'm adding second electron, then it is known as second electron gain enthalpy. But second electron gain enthalpy मेरा क्या होगा? I am supplying the energy ना, तो it will become positive. So there are two cases wherein your electron gain enthalpy will be positive. First is for which, for whom beta? Tell me. For noble gas. And second is what? Second electron gain enthalpy. So can you explain the first electron gain enthalpy again? अच्छा, first electron gain enthalpy is normal only. Okay, look here. First electron gain enthalpy is what? I was having chlorine. Chlorine was how much beta? 287. If I add electron, then it will become what? 288. तो अभी किसका एनर्जी? इसका रिएक्टेंट इज मोर देन. नाउ दिस इज माय प्रोडक्ट. Reactant and product. And what is the formula for delta H? Heat of product minus heat of reactant. Suppose इसका एनर्जी 100 था, इसका कितना हो गया बोलो? 80. So what answer I'll get? 80 minus 100. So what answer I'll get? Negative or not? Tell me. Yeah. Okay. So have you understood? Yes. But अच्छा, now imagine this was 80. अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाने नहीं वाला है, तो मेरे को और 20 और डालना पड़ेगा इसके अंदर धक्का मार के. Oh, So okay. now it will be 100 or not? Tell me. So Yes. product is how much? 100. Oh, So product will be 100 and reactant is 80. So 100 minus 80, it is coming positive or not? Tell me. yeah. Right? So there are two cases wherein electron gain enthalpy will become positive. First is for noble gas and second is for what? Second electron gain enthalpy. Easy. Now what we studied here for electron gain enthalpy, down the group decreases, across the period increases. Down the group क्या होगा बेटा? साइज बढ़ता है ना बेटा. तो here electron gain enthalpy will be, Eg means electron gain, more. Here it will be
Less. Why it will be less? Because here electron, outer electron is closer to the nucleus. Here it is away from the nucleus. Easy. Across the period, what will happen? It will increase, right? Because it is more closer to the nucleus. But there is one, you know, exceptional case. अच्छा, फॉर हेलोजन अगर मैं लिखता है, हेलोजन में बेटा क्या होता है? फॉर हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपके हिसाब से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए? टेल मी वेयर द आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर। फ्लोरीन ना? तो फ्लोरीन शुड बी मैक्सिमम ना बेटा, एंड हियर इट इज फार अवे, सो इट शुड बी मिनिमम ना। बट ऐसा नहीं होता है। इट इज, सो माय ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर वाज व्हाट? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट ये दो केस में ऐसा नहीं होता, ये कैंसिल होता है। यहाँ पे क्लोरीन पहले आ जाता है, फिर फ्लोरीन आएगा। तो नाउ यू आस्क सर व्हाई दिस इज हैपनिंग, गिव रीजन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन बेटा। ओके भाई, तो पूरे इन एंटायर पीरियोडिक टेबल हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्लोरीन। हु हैज द हाईएस्ट? क्लोरीन। गिव रीजन व्हाई, गिव रीजन व्हाई। ओके, चलो। now beta fluorine is small, chlorine is little bigger. Fluorine atomic number is 9, chlorine is how much beta? 17. So here how many electron are there? 9 electrons are there. Here how many are there? 17, but they are very far away. ऐसा मैंने बना। नाउ मेरे पास एक आउटर इलेक्ट्रॉन है जिसको मुझे इसमें ऐड करना है। आउटर इलेक्ट्रॉन, इट हैज 100 एनर्जी, ऐसे यहाँ आई एम गिविंग यू, इट हैज एनर्जी ऑफ 100. This is my outer. I have to add either in fluorine and I have to add in chlorine. Now tell me, fluorine में बेटा, can you see size is very small. So here many and electrons are more. मतलब comparatively, if you see here also electron, here so it is having more, but here size is big. But if you consider the electron density, here electron density is very high. Electron density is high. ये यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर है कि नहीं? तो यहाँ पे कंपैरेटिवली विथ कंपैरिजन टू फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। अच्छा, अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो वेयर इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्शन? टेल मी। अरे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना बेटा। बेटा इतना छोटी जगह में 9 पीपल आर देयर, और आपको बोलेगा 10वें को अंदर जा, तो वो 9 पीपल ऑलरेडी विच आर एग्जिस्टिंग, वो उसको अंदर आने देंगे क्या? नो नो बेटा। तो हियर इट विल एक्सपीरियंस व्हाट बेटा? मोर रिपल्शन। फिर भी इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये जबरदस्ती अंदर कैसे कैसे आ जाएगा? बट लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. If there is a bus, one bus is crowded and one bus is less crowded, in which you can enter easily? Tell me. Crowded bus or less crowded? Tell me. Less ground. Yes. हाँ, तो ये फ्लोरीन इज व्हाट? इट इज मोर क्राउडेड, हियर इट इज लेस। तो अच्छा, बट दोनों बस में जाने के लिए यू विल पुट इन एफर्ट ना, तो इसके अंदर इसको जाने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग मोर रिपल्शन। तो इसने 80 एनर्जी यूज कर दिया, तो बाहर वो भी कितना रिलीज कर पाएगा? ओनली 20। अच्छा, इसमें वो जा रहा है, इसमें भी उसको बेटा एक्सपीरियंस होगा रिपल्शन बट लेस। तो इसमें लेटर से इसको अंदर जाने में 60 जा गया एनर्जी, तो बाहर कितना रिलीज करेगा? एंड दिस एनर्जी रिलीज इज व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो हु इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? टेल मी, फ्लोरीन और क्लोरीन? नहीं Fluorine. था बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन ना बेटा। अंडरस्टूड, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा अभी बेटा मैं आपको ना वैल्यूज के साथ भी बता सकता हूँ बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. पीई किधर है? पीई पीरियड कहाँ गया? पीरियड
Okay, this we have done, huh, beta? Remember, beta, electron affinity, isoelectronic, we have done. Okay, now look, today we did this, beta. Okay, we are doing electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy, normally it is what, beta? Exothermic. But for noble gas and second electron gain enthalpy is endo. First was exo. अच्छा बेटा, अभी और मैं आपको बताऊं एंडो किस किस के लिए हो सकता है. अरे कंप्लीटली फिल्ड होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं ना. फॉर ऑल कंप्लीटली फिल्ड and for half filled it will be what beta? Endothermic. Why? Because they are already stable, so will they accept electron? No ना बेटा. अच्छा, मैं वो फ्लोरीन वाला वैल्यू भी बताता आपको बेटा. ये देखो बेटा, this all we have done in what beta? Remember this electron ये ionization enthalpy में. Now here I want to show you this table. मैग्नीशियम को जानते बेटा, ये टेबल आ जा भाई. हाँ चलो बेटा, ये देख रहा है इलेक्ट्रॉन गेन का एंथैल्पी का वैल्यूज है. मिहिका, कैन यू सी ऑल दीज आर नेगेटिव वैल्यू और नॉट? टेल मी. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. Yes. Down the group it decreases or not? Tell me. Don't see the negative sign. We'll see only the magnitude. 73 is bigger number or 46? 73. 73. हाँ. अच्छा, for noble gases, can you see all these values are positive? Why it is positive? Tell me now. अरे just now we studied ना बेटा. For noble gases it is endothermic or not? Tell me. Yeah. Now in halogen you see बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में बेटा ऐसा होना चाहिए था ना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा. बट ऐसा नहीं होता, ये कैंसिल हो गया. क्लोरीन का सबसे ज्यादा है. क्यों? देख वैल्यूज देख. विच वैल्यू इज बिगर? टेल मी. 349 is bigger or 328? Don't see the negative sign. Tell me का 320, 349. 349. तो in halogen who has the highest? Like this. Then fluorine, then bromine, then iodine. Are you getting it? So this is the correct order. तो इसका मैंने देख आंसर भी दिया यहाँ पर ऐसा देखो. इसका साइज स्मॉलर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, और यहाँ पे साइज इज बिगर. क्लियर? तो इसको अंदर जाने में देखना, इसके पास एनर्जी 10 था तो 8 यूज हो गया, तो बाहर कितना रिलीज करेगा? 2. इसके अंदर जाने में बेटा उसने कितना कम एनर्जी यूज करना, 6 का यूज किया, तो बाहर कितना रिलीज किया? 4. अभी ये मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन ये बता दिया, तो वेयर इट इज इन योर नोट्स? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अच्छा, अभी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मुझे बताने दो बेटा. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? लुक बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेगेटिविटी इज डिफरेंट थिंग बेटा. इफ आई टेक, देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू पीपल, ए एंड बी. अच्छा बेटा, मुझे टग ऑफ वॉर करवाना है दोनों से में, तो क्या होगा बोलो बेटा? विल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव एनीवेयर? No. जोया बेटा, इफ आई टेक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बेटा, सो विल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव एनीवेयर? नो ना बेटा. नॉट खेलते हैं ना बेटा, नो ना. बट इफ आई टेक वन स्मॉलर पर्सन एंड वन बिगर, सो वेयर दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव? अरे बेटा, एक छोटा ले लिया और एक बड़ा. So will this electron being shared equally, or it will move towards A and this is B? So where it will move? Tell me. Towards B it will move or not? Tell me. Yes. So this tendency of an element to pull electron pair towards itself. अच्छा बेटा, A ने छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है, but it is spending now more time with B. So it will develop partial negative charge and it will develop partial positive polar covalent bond. Remember बेटा, हाइड्रोजन में क्या होता था बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. बट HCl होगा तो बेटा क्या होगा? पोलर. दो पोल बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. अभी आपको खाली ये याद रखना है बेटा, फोन कॉल याद रखना. हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेगे तो फ्लोरीन, बट हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देन क्लोरीन. So what is electronegativity? Tendency of an element to pull electron pair toward itself in its compound. Now look, this electron is moved toward chlorine, so it will have partial negative and this is partial positive. Okay, that is electronegativity. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बोला? अक्रॉस द पीरियड बेटा. कॉमन सेंस है बेटा. अक्रॉस द पीरियड बेटा वी हैव ऑलरेडी डन. पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मेटल होता है, राइट में नॉन मेटल. जोया टेल मी, हु विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ? मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल ना बेटा. हेलो मेटल दे यार. कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने पास बुलाएगा बेटा? जिसका साइज बड़ा है या जिसका साइज छोटा है? टेल मी. स्मॉलर. So across the period electronegativity increases. Down the group decreases.
तो अभी बेटा ये देख, मैं तुमको ना एक पीडीएफ शेयर करूंगा बेटा, दैट इज ऑफ 10th ग्रेड का बेटा। जोया तू एक बार रीड करना वो, मिही का तेरे पास तो है वो नोट्स रखे के दे दिए मिही का? No, I have them, sir. हाँ, तो दैट पीरियोडिक टेबल इट विल बी यूजफुल फॉर यू दैट। Okay. And organic chemistry, once we start, huh? Organic chemistry, which one? The one which I made you write in the class. Okay, this is your periodic Okay. table. Look, what all thing we have studied from this, atomic radius down the group increases, across the period decreases. Between halogen and noble gas is slightly bigger. Then between cation and anion, we have done, okay, atom is bigger than cation. And if I write anion, so anion will be bigger. This we did last class. And what happens down the group across the period we have written. Then we have done this today. Electronegativity, tendency of an element to attract the electron pair toward itself. Across the period, left to right, it increases. Down the group, it decreases. Most electronegative element is fluorine. Then today we did, last class we did this ionization potential के बदले हम लोग word क्या use करेंगे? Ionization energy. It is the energy required to remove the most loosely held electron. Down the group, it what decreases. Across the period, increases. Element which has highest ionization electron affinity, helium. Lowest will be cesium. Then today we did this. Electron affinity. Affinity के जगह पे हम लोग word कौन सा use करेंगे? Electron gain enthalpy. It is the energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an ion. Highest electron affinity किसका है बेटा? क्लोरीन का. Okay, right? Now, in this beta, there are the beta. Can you see this? This size and all we have done already. अच्छा, आज हम लोग तुम्हारा पोदार में से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, right? It is the tendency of an isolated atom to accept the electron. Electronegativity is what? Tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a covalent bond. It does not have any units. It is the khali capacity, na? Whereas this is the energy, na beta. Energy has, right? This is for the property of isolated atom. This is not of isolated atom. We have done what is effective nuclear charge. It is the charge experienced by the valence electron as a result of screening and shielding effect. Isoelectronic we did. Ionization of nitrogen is greater than oxygen with electronic configuration we did. Okay. Now there are few trends which we have to study बेटा. अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना बेटा जो आपके लिए ना थोड़े नए हैं बेटा, नए. वो आप मुझे बताना है आप लोगों को. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या दिया नहीं है लोगों ने. हाँ, ये रहा बेटा. First I and second I we have done. First I will be less, second I will be more. Because size decrease हो जाएगा ना बेटा, so more energy is required. Electron affinity ये रहा क्वेश्चन. Fluorine has less electron negative gain enthalpy than chlorine. Look, ये आज की रीजन बताया कि नहीं? Chlorine has larger orbitals as compared to fluorine. Fluorine में 2p होता था. Hence, it is easier to remove an electron from chlorine atom than from fluorine atom. Clear? वो इसमें आंसर रॉन्ग लिखा है बेटा ये लोग. ऐड है होना चाहिए ना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस टू ऐड. कुछ भी लिखा है ये लोग ने आंसर. हाँ, ये देख यहाँ पे दिया बेटा. देख यहाँ पे क्लोरीन कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड एज कंपेयर टू फ्लोराइड बिकॉज क्लोरीन हैज हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड मोर इजिली. ये परफेक्ट दिया यहाँ पे.
ये भी मैंने बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका हाई होगा बेटा? नाइट्रोजन का, हाफ फिल्ड ना बेटा। फिर देखो ये इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ये सब मैंने बता दिया था बेटा आपको। Now, today I'm going to discuss some of the ionic radius, beta. Radius, ionic radius. Okay. बेटा ये चैप्टर है ना एकदम पूरा, ये लोग ने ना रैंडमली दिए क्वेश्चन बैंक, इसमें देयर वी शुड नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स, इसलिए इनको पहले रेडॉक्स रिएक्शन कराना चाहिए था। दे हैव नॉट डन रेडॉक्स रिएक्शन इन योर स्कूल। दे शुड हैव डन फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच विल नॉट अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बेटा। हाय देख बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये क्वेश्चन आया कि नहीं, व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। आज बताया ना बेटा मैंने, अरे मिहिका वी डिड राइट टुडे दिस राइट ना। Yes, the endothermic. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। अरे देख ना, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन becomes negatively charged and but अभी if I want to add second electron, so second electron is also negative and ion is also negative, so electrostatic Repulsion. repulsion will be there or not, tell me। Yes. अभी यहाँ पे भी वही दिया है वो लोगों ने क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ F माइनस फ्रॉम F इज एक्सोथर्मिक whereas O2 माइनस फ्रॉम O इज एंडो। क्यों? अरे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, राइट, नेगेटिव। बट ऑक्सीजन में मैं पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेगेटिव होगा, बट अगर अभी तक ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अभी इसके अंदर मैं और एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल होगा ना, तो दिस विल बिकम व्हाट? पॉजिटिव। Positive. So बिग that पॉजिटिव। become an endothermic. यस, वेरी गुड। Now there are few concepts which I have to now teach you related to this. Okay? देखिए रहा बेटा, second electron gain enthalpy of halogens is zero. Why it is zero? अच्छा क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन के अंदर if I add one electron, तो अच्छा this was 287 ना बेटा। Now if I, so now it has become 288. So it has become stable or not? Tell me. So will it accept electron easily? No ना बेटा। No. हाँ। Yes. Therefore, it has become noble gas, and for noble gas, electron affinity is zero. फिर भी हम लोग एक जबरदस्ती डाल सकते हैं, लेकिन then it will become positive, right? ना endothermic it will become. Okay, yeah. ये बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा, ये वाला आएगा तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, ये वाला। चलो बेटा, यहाँ पे वैल्यू दे आर गिवन। व्हाट वैल्यू दे आर गिवन? फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन and electron gain enthalpy is also given। देख रहे हैं, ये फर्स्ट IE है, ये सेकेंड IE है, I2, and this is EG। Now what question you have to, on the basis of this, what all thing you have to answer, that we have to see what all thing they are given। चलो, the least reactive metal, least reactive मतलब जो रिएक्ट नहीं होगा। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं तुमको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देता हूँ, देखो बेटा, एक छोटा एलिमेंट है, बड़ा है, बड़ा है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों हम लोग पॉसिबिलिटी करते हैं बेटा, ठीक है ना। और अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? कम होता है। ऐसा दोनों पॉसिबिलिटीज हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी आयनाइजेशन का मतलब क्या है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे मैं आसानी से निकाल पाऊंगा? जिसका साइज बड़ा होता है या जिसका साइज, बोलो बेटा, वेयर आई हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, अबव वन और बिलो वन? Above. Above. So here I will be more, here I will be less। ये जिसका लेस होता है that is what? बोलो, मोस्ट रिएक्टिव। और जिसका लेस होगा वो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव ना। अरे इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? इसमें कम देने का है, तो ये आसानी से, तो इट इज मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ टू आई टू सप्लाई मोर एनर्जी, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। तभी पहले हम लोग क्या करेंगे? द लीस्ट रिएक्टिव के लिए तेरा आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। कहां पर आई का वैल्यू सबसे ज्यादा है बताओ? अरे देखिए आई है बेटा, वेर इट इज मोर? Fifth. फिफ्थ वन ना बेटा, राइट। Yes. तो इट इज द लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए तेरा आई का वैल्यू?
Least. लीस्ट, लीस्ट किसमें Okay. तेरा? Second. Second. हाँ, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अभी उन लोगों ने क्या बोला है? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब क्या हो जाता है बेटा? नॉन मेटल होगा बेटा तो अक्रॉस द पीरियड हम लोग जाएंगे तो साइज विल डिक्रीज ना बेटा, कैन यू से दिस? Yeah. लीस्ट रिएक्टिव के लिए तेरा नॉन मेटल, नॉन मेटल अब ये पीरियोडिक टेबल में सपोज ये ग्रुप 15 16 17 है ऐसा, तो लीस्ट रिएक्टिव 17 ज्यादा रिएक्टिव होगा, ग्रुप 15 वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो नॉन मेटल के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा बेटा? अभी मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ओके। एंड अभी यहाँ पर आपको देखना बेटा, हियर यू हैव टू सी टू पैरामीटर। लीस्ट रिएक्टिव के लिए तेरा दो चीज देखना पड़ेगा बेटा। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोला है बट मेटल वर्ड यूज नहीं किया ना वो लोग ने बेटा। फॉर लीस्ट रिएक्टिव व्हाट शुड हैपन? आई शुड बी मोर, बरोबर है कि नहीं? हो गया लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अच्छा बेटा, नॉन मेटल होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बोलो बेटा? नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, अरे वो आसानी से एक्सेप्ट करेगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी यही आना चाहिए बेटा। एक ना आंसर में क्या दिया है, दोनों में सेम आना चाहिए। देख, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या आया है तुम्हारा? सेकेंड, ये बरोबर है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या दिया है? लीस्ट इलेक्ट्रो, फाइव, बरोबर है बेटा, बरोबर आंसर था अपना, फाइव। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए उन लोगों ने क्या वैल्यू दिया है? नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए, हाँ बरोबर है। देख, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल इज वेरी हाई। अरे, जो नॉन मेटल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा। अच्छा मेरे को बता, मेटल लेता है या नॉन मेटल? तो ये वैल्यू हम लोग देखेंगे। डोंट सी द नेगेटिव साइन, जस्ट सी दिस। Non-metal. या अ मेटल विच कैन फॉर्म व्हाट? स्टेबल बाइनरी हैलाइड विद mx2, ओके, mx2 फॉर्मूला, राइट ना? mx2 मतलब m का वैल्यू कितना है बोल बेटा? m का वैलेंसी कितना है? 2 प्लस ना बेटा। सो उसको कितना कितना आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसका? 2 बार होगा कि नहीं? अरे मतलब I1 एंड I2, ओके। तो आई तो मेटल विथ, ये तेरा देखना m+2 है ना बेटा, तो उसका I2 किसका सबसे कम है? I1 और I2 में। ये देख बेटा, ये I2 था ना तेरा, तो I2 इसमें से सबसे किसका कम है बोलो? 6. 6. Why we looking at the least and not the most? अच्छा, मतलब जिसमें कम सप्लाई करना पड़ेगा वही तेरा आसानी से रिएक्ट होगा ना बेटा। हेलो, Okay. Okay. राइट ना? अरे Yeah. बेटा, Yeah, got it. ओके। एंड क्या बोला है? मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हैलाइड। ये हैलाइड बना रहा है ना बेटा, तो ये माइनस है और ये क्या है बोलो बेटा? तेरा +1। तो +1 किसका? +1 बनाना चाहिए ना तेरा बेटा। तो तेरा आई कौन सा आई देखेगी तू बेटा? First. हाँ, लेकिन बेटा इसमें ना तू बोलेगी सर ये सेकंड क्यों नहीं बनाया बेटा? हैलाइड बनाने का है उसको बेटा। आंसर इसका क्या लिया हम लोग ने? 1 लिया है ना बेटा इसका, 1। हाँ, 1 क्यों लिया? इसका रीजन क्या होगा? 1 मेटल हैलाइड ना, तो एक ना बेटा, इसका 1 लिया है, कैसे लिया है 1? मतलब तो फर्स्ट ही होना चाहिए था बेटा। अच्छा, उसमें कुछ लिखा है कोवेलेंट, ऐसा लिखा है क्या वर्ड? कोवेलेंट वर्ड है क्या उसमें? हाँ, कोवेलेंट कौन बनता है बोलो बेटा? कोवेलेंट हैलाइड बोला है ना, तो कोवेलेंट मींस बोथ शुड बी व्हाट? Non-metal. नहीं नहीं, नॉन मेटल तो होगा बट मेटल भी लिखा है ना, मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हैलाइड। इसके लिए कॉन्सेप्ट है बेटा, स्मॉलर द साइज ऑफ यू नो दिस थिंग, कटायन ग्रेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो तेरे को स्मॉलर, उसका साइज क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉलर होना चाहिए। एक फजान्स रूल है बेटा, But we did that last class. फजान्स रूल वी हैव डन ना। हाँ, तो बेटा Hmm. इसका, अच्छा मेरे को बता, एक दो चीज है बेटा, दोनों मेटल है, दोनों का आई कम ही होगा बेटा, लेकिन बेटा किसका कम होगा? इसका ज्यादा कम होगा ना बेटा। इट इज फार अवे एंड दिस इज स्मॉलर, तो इसमें ये वाला तेरा बहुत मेटेलिक है, तो एकदम मेटेलिक होगा बेटा। दैट कैन नेवर बी व्हाट? दैट कैन नेवर बी कोवेलेंट, ओके। तो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए बेटा, तो ये वाला होगा तेरा।
क्यों? इसमें आई रिक्वायर मोर एनर्जी ना, कंपेरेटिवली मोर है ना इसमें. Sir, what is exactly Fajan's rule again? Smaller is the अच्छा, आई टेल यू, चलो बेटा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, देखो बताता. नॉर्मली हम लोग ने अभी आज पढ़ा था, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट कोवेलेंट में बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? इट विल ट्रांसफर हियर, राइट बेटा? सो इट हैज डेवलप पार्शियल आयनिक कैरेक्टर और नॉट? टेल मी. ओरिजिनल बॉन्ड वाज कोवेलेंट and now it has developed which character? Partial ionic character, partial. So we know that in covalent it can have ionic character, but ionic bond है बेटा, NaCl, KCl, right? अभी ये भी दोनों आयन है, प्योर आयन है, इसमें भी बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है. These are pure को ionic, और आयनिक के अंदर मुझे अंदर इसके अंदर what I can add, it can have covalent character. इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है बेटा, लिथियम क्लोराइड ये सब. तो नाउ टेल मी बेटा, इस सब में बेटा हु इज देयर? ऑल आर क्लोराइड और नॉट? टेल मी. तो आई हैव लिथियम एंड देन क्लोराइड, आई एम टेकिंग क्लोराइड एवरीवेयर. क्लोराइड का साइज चेंज होने वाला है क्या? बोलो, इज इट गोइंग टू चेंज? नो ना. देन आई हैव हियर व्हाट? सोडियम इज स्लाइटली बिगर, देन पोटेशियम इज स्टिल बिगर. नाउ सपोज बेटा इफ देर आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर, इन विच केस इलेक्ट्रॉन कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मेटल? टेल मी. इजिली अट्रैक्टेड किसमें से होगा? ये लिथियम न्यूक्लियस इसका यहाँ पे है बेटा, देखो न्यूक्लियस है. तो इन विच first. केस न्यूक्लियस दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर अट्रैक्टेड First. फर्स्ट. अच्छा, इलेक्ट्रॉन अभी मतलब क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? शेयरिंग में आ जाएगा ना बेटा. So that is known as what? अच्छा, original this bond was what? Ionic, but now this electron are also getting transferred towards lithium. So there is partial covalent character also or not? Tell me. Now, Yeah. who will have maximum covalent character? The one who can pull this electron easily toward itself in a compound. So that will be who? Lithium. So, acha, abhi ye cation hai, all these were which ions? On this, they are which ions? Cations or not? Tell me. Right? So, which cation size is smaller? Lithium, sodium, or potassium? Tell me. Lithium, na? So, smaller the size of cation, greater is covalent character. Fajan's rule. So exam में ऐसा क्वेश्चन आएगा, between LiCl, NaCl and KCl, who has highest covalent character? Come on. LICL. LiCl, very good. Okay, Fajan's rule. Similarly, agar if I give you this beta, I have kept metal constant. Now I'm going to change the anion. Suppose lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide. तो लिथियम का साइज सेम है कि नहीं तीनों में? बोलो. अच्छा, दिस इज मेटल है नहीं है, तो नॉन मेटल तो आयनिक बॉन्ड है कि नहीं? नाउ फ्लोरीन का साइज इज व्हाट बेटा? स्मॉल. क्लोरीन इज लिटिल बिगर एंड आयोडीन इज स्टिल बिगर. नाउ ओके, in which case this electrons will move towards metal easily? Tell me in which case it will. metal तो पुल कर रहा है यहाँ से, दोनों जगह से. कहाँ से वो इजिली पुल करेगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है? अरे, द इलेक्ट्रॉन विच आर हियर, दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस और नॉट? टेल मी. Yeah. Third one. हाँ, तो थर्ड वन में बेटा इट इज फार अवे फ्रॉम दिस न्यूक्लियस ना, सो इट विल मूव हियर इजिली. So now again the covalent character will develop or not? So now you tell me down the means if I have LiF, so here can you see this was all my anion. So bigger the size of anion, bigger anion, bigger anion, greater covalent character. Okay, so between LiF, LiCl, LiBr. First, what you have to do? पहला देखने का कौन कांस्टेंट है. अच्छा चलो, कैटायन कांस्टेंट है तो आई विल सी द साइज ऑफ एन आयन. So here it will be more. अच्छा, in this case, beta, what you are going to do? You will see all anions are same. Then you will see the size of cation. Smaller the size of cation, greater is the covalent character. Are you getting it?
नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज एटॉमिक साइज में भी है ना बेटा बहुत प्रॉब्लम होता है एटॉमिक साइज में। चलो बेटा अभी ये ग्रुप वन में एक एक्सेप्शनल केस आता है। कहाँ कहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस आता है ना, दैट आई विल टीच यू बेटा। ओके, ये डाउन द ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसा बढ़ते जाता है कि नहीं, बोलो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होता है कि नहीं, बोलो ना बेटा, राइट, कॉमन चीज है। अभी बेटा बेटा जैसे मैं ना यहाँ पे जाऊंगा ग्रुप 13 में, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, राइट, और बैंगन बैगन आलू गाजर इन थैला। अच्छा चलिए यहाँ पे मैं बता देता तुम लोग को, कहाँ गया, आई विल गिव यू द न्यूमोनिक, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, डोंट वरी। Look beta, this is periodic table. Look, can you see this is group 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. 15 के लिए क्या ट्रिक है बेटा, नेहा पास बिंदास। ओके, 16 के लिए क्या है, ओसामा सीन इन टेम्पो। ग्रुप 17 के लिए फर्स्ट क्लास बिरयानी आइट। 18 के लिए हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, देख रहे हैं। फॉर ग्रुप 15 व्हाट वी हैव, ग्रुप 13 बैगन आलू गाजर इन थैला। For group 14, it we have chemistry, sir, gets stunning publicity. Carbon, silicon, germanium, stannum, Pb means lead. This is boron, aluminium, this is gallium. अच्छा, डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए, बोलो बेटा, बढ़ना चाहिए कि नहीं, बोलो। ऐसा बढ़ता है ना बेटा डाउन द ग्रुप, बट प्रॉब्लम व्हाट वी नोटिस हियर, यू नो बेटा, इन ग्रुप 13, अरे यार आजा भाई, हाँ, बोरॉन छोटा है, एल्यूमिनियम बड़ा है, लेकिन गैलियम थोड़ा छोटा हो जाता है इससे, फिर वापस तेरा इंडियम बड़ा है और ये बड़ा है, मतलब। तो भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, सर ये गैलियम कैसे। पहला एक चीज दिमाग में डाल दो, देयर इज नथिंग पीरियोडिक अबाउट पीरियोडिक टेबल। आपको 10th में सब उल्लू बनाते पीरियोडिक, ऐसा नहीं होता है। हर एक ग्रुप में ना एक्सेप्शन केसेस आर देयर, हर एक पीरियड में देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, तो ऑल दिस एक्सेप्शन वी स्टडी, because therefore this inorganic chemistry is totally based on exception, there is no standard rule we follow. ओके, तो नाउ दिस गिव रीजन विल कम, तुम्हारे पोदार के बुक में दिया भाई, गैलियम का साइज इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, तो भी ये मैं तुमको बताते। पी ब्लॉक सीबीएसई, ओके, yeah, we got it. तो बेटा लुक दिस पीरियोडिक टेबल बेटा, दे हैव गिवन ओनली दिस, बट बेटा यू शुड नो एस ब्लॉक एंड थोड़ा वाइड है इसका अप्रोच बेटा। सो लुक बेटा, पी ब्लॉक में वी आर गोइंग टू, कैन यू सी दिस, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, हेलो, आई एम डूइंग दिस ग्रुप 13 नाउ। ग्रुप 13 में कौन है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ये लो, बोरॉन। अच्छा, अभी आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दिस, हाँ बेटा देखो अच्छे से, आई विल हैव टू मेक इट लिटिल बिगर। लुक बेटा, दिस इज योर, आई गेस और थोड़ा बड़ा बनाता पहले बेटा। अच्छा बेटा, दिस इज योर बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर इज हाउ मच, मिहिका टेल मी। 5. 5, तो 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम इज 13, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ए जोया बेटा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुझे? Yes, sir. हाँ। अच्छा, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 31। अभी दे बेटा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 एंड देन 4p1। अच्छा तुम मुझे बताइए, पहले तो मैं तेरे को डी ऑर्बिटल नजर आ रहा था अंदर, नहीं ना बेटा, यहाँ पे पहली बार तुझे डी नजर आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा नाउ टेल मी, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिट होता है बेटा, एस, फिर कौन होता है, पी, फिर कौन होता है, डी। हुज शील्डिंग पावर इज मैक्सिमम, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, चलो बेटा मैं आपको बताता हूँ। E. सपोज बेटा आप अपने आंख के आगे ना ऐसा मैंने हाथ रखा है, फर्स्ट केस में आई हैव केप्ट क्लोजर, देन थोड़ा फार, देन थोड़ा फार, इन विच केस योर व्यू विल बी ब्लॉक मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, टेल मी, अरे वेयर First. योर व्यू विजन विल बी ब्लॉक मैक्सिमम, ऐसा हाथ रख के करो ना, 1 2 3,
First. Mihika, which case? First. फर्स्ट, वेरी गुड. तो हु शील्डिंग इज मैक्सिमम बेटा? एस का. पी का कम है, फिर डी का. ओके, सो नाउ टेल मी वेयर देयर शील्डिंग इज पुअर इन दिस केस बेटा, टेल मी. यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, हियर आल्सो इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग. बट इन केस ऑफ गैलियम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट इज कमिंग बेटा? 3D आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको पता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है बोलो बेटा? 31 प्रोटॉन. एंड हियर शील्डिंग इज पुअर. तो बेटा अभी इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसका शील्डिंग क्या है? कम. तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन विल मूव लिटिल क्लोजर. अरे बेटा, इफ द शील्डिंग इज पुअर बेटा, तो न्यूक्लियस कैन सी द आउटर इलेक्ट्रॉन इजिली, सो इट विल ब्रिंग इट क्लोजर और नॉट? टेल मी. Therefore, in gallium, atomic size will be little less as compared to aluminium. तो आप बोलोगे सर नीचे और भी कम होना चाहिए. नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी 3D10 और यहाँ पे भी 3D10 एक बार आ गया कि नहीं 3D10, so that effect is already compensated. So here if you see, look at the atomic size, you see I have given the atomic size here. अरे where it is, तीनों का देख. किसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है? देख, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, ये फिर गैलियम का देखना. ओ तेरी, कम हो गया कि नहीं? अरे कम हुआ कि नहीं? क्यों हुआ कम? तो इसका मेन रीजन क्या है बोलो बेटा? व्हाट इज द मेन रीजन? टेल मी. कम ऑन मिहिका, लुक, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 3D10 and nuclear charge is also increasing drastically ना. यहाँ पे 13, here it is how much? 31. Mihika, are you getting it? Tell me. Yes. Yes. अच्छा, फिर देखिए बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे भी बढ़ा बेटा, देख रहा है कि नहीं? तो अभी ये क्वेश्चन कहाँ पर है तुम्हारा इसमें? Could you explain this again once? यस, वेरी गुड बेटा. चलो, ओके. अच्छा बेटा, now here boron atomic number is 5. What is nuclear charge Zoya beta? First tell me the charge on the nucleus. Nucleus is nothing but atomic number. अरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज. सो व्हेन आई से एटॉमिक नंबर इज 5, सो इट्स न्यूक्लियर चार्ज इज 5. बट देयर आर ओनली 2 ऑर्बिट्स. एल्यूमिनियम में बेटा क्या है? 13 प्रोटॉन्स आर देयर. बट ऑर्बिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ना बेटा. बट इन गैलियम बेटा atomic number is 31, so their orbit are 4. Okay, and for the first time what is coming into picture? D10 is coming. यहाँ पे पहले में D10 आ रहा था क्या बेटा? नहीं ना. Now Zoya, tell me whose shielding is more? The one which is closer. S is closer, P is far away, and D is very far away. तो D में न्यूक्लियस को कौन ज्यादा छुपा सकता है? S छुपा सकता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, फिर P, फिर D. So now here what is happening बेटा? So D का shielding power is what बेटा? Poor ना बेटा. Suppose I am nucleus and this hand is my d orbital and this pen is my outer electron. If it is S, then I cannot see this pen closely, easily. So my force of attraction for this pen will be less. For P, it will be little more. But for D, I can see this pen very easily. So I will bring it closer. So this electron will move closer towards me. So what will happen to my size? It will decrease or not? Tell me. Yes. Yes, Zoya beta. So I have to write because of poor shielding of 3D10 electron. Okay. So now where is this question beta? I'll show you in your Poddar ka this thing. Look. Atomic size of gallium is smaller than aluminium. किधर गया? कहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन? किधर है? हैं? Oof. अरे यार, क्यों नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन? लेट मी चेक. हाँ बेटा, ये फटाफट मैं चेक करता हूँ. कहाँ ना कहाँ तो होगा बेटा ये क्वेश्चन. और ये पूरा
हाँ ये रहा बेटा, दिख गया। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस? Mihika and Zoya, can you see this? Hello. Yes, sir. Look बेटा, in aluminium there was only P, but in gallium पहली बार D10 आया, and बेटा ZF मतलब nuclear charge. Nuclear charge will be, effective nuclear charge will be in gallium it will be more. Why? Because D का orbital का shielding is what? Improper. Right? Therefore the net force of attraction is lesser than aluminium. And then in gallium का बेटा nuclear charge बढ़ जाएगा ना, तो बाहर वाला electron will come closer. Are you getting it now? Hello. अच्छा, अभी एक बेटा एक टर्म आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. व्हाट इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट. व्हाट इज दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच? ओके. अच्छा बेटा, अभी ये अगर आपको आएगा ना तो आप यू कैन आंसर दिस ऑल्सो बेटा. अच्छा तू मुझे बता बेटा, ए साइज इंक्रीज हो रहा है तो देख आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बोलो बेटा? डिक्रीज. क्लियर? बट इसका साइज डिक्रीज हो गया ना, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी देख बढ़ गया कि नहीं? 577 और 570. कॉमन सेंस है ना, साइज डिक्रीज होगा तो आई विल इंक्रीज. अब बेटा इधर पे आ जाते बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट. अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए बेटा मैं तुमको बता देता हूँ. पहला बोरॉन देख बेटा, बोरॉन में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो? 1s2 2p1. ग्रुप 13 वी आर डूइंग ना, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. सो इसका कितना होगा? अच्छा बेटा, जिसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन 3 दे देगा ना, तो सबका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 +3 +3 +3. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. +3 +3. नाउ अच्छा, S इज क्लोजर बेटा, P इज लिटिल अवे, D इज फार अवे, F उससे भी दूर है. तो सबसे पुअरेस्ट शील्डिंग किसका होगा? S P D या F? F. F. वेरी गुड. ओके. अच्छा ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बोरॉन एल्यूमिनियम. एक मिनट बेटा, ये रहा. अच्छा, आपको पहली बार D कहाँ पे नजर आया? गैलियम में. फिर इसमें इंडियम में कितनी बार है D? 2 बार है कि नहीं? और यहाँ पे देखो बेटा, नीचे कौन था? थैलियम में बेटा F भी है. अरे आई मेक इट बिगर. ले भाई, बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटा. हाँ ये ले बेटा. फर्स्ट दो में बेटा D दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना बेटा? अच्छा D देखिए, पहली बार पुअर आया, यहाँ पे 2 2 पुअर लोग हैं, यहाँ पे 3 3 पुअर है, और ये पुअर लोग का किंग भी है. F तो बहुत दूर है ना बेटा. नाउ देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ना, अच्छा अभी मैं, आप मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे सेंटर में कौन था? इसमें न्यूक्लियस. ओके, इसमें न्यूक्लियस था बेटा, राइट ना बेटा? ओके, न्यूक्लियस. और बेटा इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है बेटा, 81 प्रोटॉन्स है ना बेटा. यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है? कम है. ऊपर देखना 49 ही है. यहाँ पे कितना है? 31. यहाँ पे 13. यहाँ पे 5 ही है. नाउ अच्छा मेरे को बताओ, हम लोग ने अफबा प्रिंसिपल पढ़ा है, पहले 1s2 आता है, फिर 2s2 आता है, फिर 2p1 आता है. तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा है? 1s है. फिर कौन है? 2s. 2p बहुत दूर है कि नहीं, बोलो बेटा? ओके. एनीवेज, लेकिन बेटा यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन इट विल लूज. सो व्हाट इज इट? ऑक्सीडेशन स्टेट 3. Here also बेटा it will lose this 3 electrons. So oxidation state is +3. बट यहाँ पर बेटा देखो ना, गैलियम को लाइफ में मौका मिलेगा. गैलियम के नजदीक कौन रहेगा? न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? पहले 4s2 है, फिर क्या है? 4p1. सो मिही का बेटा विच शेल इज क्लोजर, 4s2 और 4p1 टू द न्यूक्लियस? टेल मी. 4s. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुअर शील्डिंग ऑफ डी, तो ये न्यूक्लियस ये 4s2 को आसानी से देख सकता है कि नहीं, बोलो? बाद में 4p आएगा ना बेटा. लुक, इफ माय शील्डिंग इज ऐसा प्रॉपर, तो आई कैन नॉट सी माय आउट, ये पेन मुझे दिखाई नहीं देगा. बट अगर मैंने ऐसा रखा तो मुझे पेन दिखाई देगा कि नहीं? अच्छा, न्यूक्लियस को पहला कौन सा इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा? 4s2 या 4p1? 4s2. एंड यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या करेगा पता है क्या? ये 4s2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पकड़ के रखेगा, और किसको जाने देगा? whom it will allow to go? 1 इलेक्ट्रॉन को ये जाने देगा. इसको अगर लाइफ में मौका मिलेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा क्या प्रीफर करेगा? इट विल प्रीफर टू लूज ओनली दिस 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाउ मच बेटा? +1. अच्छा, इसने किसको पकड़ के रखा? जोया टेल मी. अरे इट हेल्ड विच इलेक्ट्रॉन? जोया बेटा, विच इलेक्ट्रॉन इट हैज पकड़ के रखा? टेल मी. कम ऑन जोया.
Am I audible, जोया? Yes, sir. हाँ, इसने किसको पकड़ के रखा है? 4s2 का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा। और जाने किसको दिया? इसको, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1। क्यों इसने 4s2 को पकड़ के रखा? ओके, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू होल्ड विच इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? NH2 इलेक्ट्रॉन। क्यों पकड़ के रखा? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर, ये d ऑर्बिटल अंदर है कि बाहर था? अंदर था ना। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर d ऑर्बिटल, D and F। यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे तो F नहीं है। हाँ, तो बताता ना बेटा। यहाँ पे देख बेटा, नीचे जा। क्या है इसमें? कितने हैं? अच्छा, तो दिस इज द पुअर शील्डिंग। इसमें कितना पुअर लोग है? एक पुअर है। यहाँ पे कितना पुअर है? दो पुअर है। नाउ टेल मी बेटा, तो इसमें हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 49। नाउ मिहिका, यू हैव टू टेल मी बेटा, हियर देयर आर टू पुअर, सो वेयर द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस will be more in case of indium or 5s. gallium? 5s. 2. Indium or gallium, tell me. Hello Mihika, tell me. हाँ. Gallium will hold NH2 electron more strongly or indium will hold more strongly? Gallium. नहीं बेटा, गैलियम नहीं करेगा ना। गैलियम में देयर वाज ओनली 3d10 ना बेटा, एक ही पुअर था। यहाँ पे दो लोग, Oh, okay. तो हियर इट विल बी मोर होल्ड ना बेटा। Okay, yeah. अच्छा, तो गैलियम, इंडियम को भी लाइफ में मौका मिलेगा +3 बनने का, +1 बनने का, तो क्या बनना पसंद करेगा? +1। नाउ यहां पर आ जा बेटा। थैलियम में कितना है जोया? कैन यू सी? अरे पुअर लोग का लॉट है, देख रहा है? पुअर शील्डिंग वाले। एंड दिस इज किंग ऑफ पुअर। एंड लुक, न्यूक्लियर चार्ज इज 81। तो ये 6s2 को और कस के पकड़ के रखेगा कि नहीं? अरे बेटा, ऑर्बिटल ओपन ओपन हो रहे हैं, तो बेटा इट विल होल्ड इट वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड इटसेल्फ और नॉट? टेल मी। Yes. हाँ, सो अच्छा, ये इसको पकड़ के रखेगा तो रिएक्शन में जाने नहीं दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है? 2। तो NH2, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? पेयर। अच्छा, ये लोग रिएक्शन में नहीं जाएंगे, नहीं जाते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट। तो ये कौन सा पेयर हो गया? बोलो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू होल्ड विच इलेक्ट्रॉन? आउटर इलेक्ट्रॉन, NH2 इलेक्ट्रॉन। देख, इसने इसको 6s2 को पकड़ के रखा, इसने इसको आउटर वाले को पकड़ के रखा, इसने भी 4s2 को पकड़ के रखा। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं था इन दोनों में। क्यों नहीं था बोलो बेटा? यहाँ पे कोई भी पुअर ऑर्बिट दिख रहा है आपको? DIF दिख रहा है फर्स्ट 2 में? Mihika, can you see DNF in first 2? No, na beta. No. So here there is poor one. So Yeah. tendency of an element to hold which electron? NH2 electron. Why? Due to the poor Because of shielding of poor shielding. inner, ये अंदर की तरफ है inner D electrons and inner F electron is known as inert pair effect. Is known as what? Inert pair effect. So what is inert pair effect? देखो, tendency of an element to hold which electron? Tell me. NH2 electrons. अरे कहाँ गया वो? Huh? What man? Where it is? Tendency of an element to hold NH2 electron due to the poor shielding of inner D and F electron is known as inert pair effect. अच्छा, फर्स्ट इसमें बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको कहाँ पे नजर आया? बोरॉन और एल्यूमिनियम में आया क्या? नहीं। अच्छा, डाउन द ग्रुप तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे एक ही पुअर है, यहाँ पे दो पुअर है, यहाँ पे 3 पुअर एंड किंग ऑफ पुअर। So in which inert pair effect will be maximum? Gallium or thallium? Tell me. Thallium. Thallium. तो थैलियम को लाइफ में मौका मिलेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का या ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो वो क्या आसानी से लूज करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना बेटा। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल? +3 और +1? +1. +1। समझ में आ गया? एग्जाम में ये भी पूछे गए, राइट द ऑर्डर ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कौन था बेटा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ओके, और बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इन दोनों में तो होता नहीं है, इनमें होता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा किसमें बोलो बेटा? गैलियम, इंडियम और थैलियम लिखा, तो थैलियम में सबसे ज्यादा है। आपको और एक क्वेश्चन आएगा ग्रुप 13 में बेटा, एज यू गो डाउन द ग्रुप, कैन यू सी आई हैव रिटन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे तो ये 3 लूज कर रहा था, ये भी 3 कर रहा था। इन जनरल ग्रुप 3 +3 दिखाएगा बेटा, लेकिन बेटा नीचे वाले को मौका मिलेगा तो वो क्या बनना पसंद करेगा? +1। सो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस।
क्लियर? तो अभी ये देखो ये कितना कॉन्सेप्ट था, अब तुमको वो आंसर आएगा। कौन सा वाला आंसर आएगा आपके ये बुक में उसमें? अच्छा बेटा, ये जो आपको ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट नजर आया, कहाँ पे नजर आया? ग्रुप 13 में नजर आया कि नहीं, बोलो। सिमिलरली आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे नजर आएगा पता है क्या बेटा? ग्रुप 14 में भी आएगा। वेर इट विल कम बेटा? मीका बेटा, इट विल कम इन ग्रुप 14 ऑल्सो और नॉट? टेल मी। Yeah. या नाउ यू ओनली टेल मी बेटा, ग्रुप 14 में कहाँ पर है? आ जा भाई, ग्रुप 14। ये देख बेटा, ये देख रहा है कार्बन। अच्छा नाउ टेल मी बेटा, वेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट विल स्टार्ट हियर? टेल मी। कार्बन, सिलिकॉन एंड, देख यहाँ पे 3d10 दिख रहा है बेटा। Yes. देन बेटा हियर, 3D एंड दिस 10. इज योर लेड। नाउ इफ बेटा Most. लेड, हाँ, तो नाउ टेल मी बेटा, नॉर्मल इनके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 था कि नहीं? So they Yeah. should lose 4 electron. Yeah. But as you go down the group, what will happen? This NH2 electron will be hold together too tightly towards the nucleus. So it will give The only this motion. outer electron. So lead को लाइफ में मौका मिलेगा +4 बनने का, +2 बनने का, तो वो क्या बनना पसंद करेगा, बोलो बेटा? +2. वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे भी इनर्ट फेयर इफेक्ट विल बी मोर इन लेड देन टिन एंड देन जी। Okay, this is your group 14. And what is the mnemonic for group 14 beta? Here, chemistry, sir, C for carbon, sir for silicon, gets for germanium, stunning means stannum, publicity means PB. आप बोलेगे सर ये क्यों इतना पढ़ा है आपने? तो देखो बेटा, ये नहीं पढ़ा था ना, तो अभी आपको ये आंसर नहीं आता बेटा, ये देखो। चलो बेटा आ जाओ, अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा ना वो देखो गौर से। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया? व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू होल्ड विच इलेक्ट्रॉन? NH2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू द इनर DNF इलेक्ट्रॉन, that is known as inert pair effect. अच्छा बेटा, ये देखिए क्वेश्चन है बेटा, PbCl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर PbCl4 क्यों नहीं बनाएगा, बोलो बेटा? Why it will not form PbCl4? Now tell me बेटा, मिहिका, जस्ट नाउ वी स्टडीड ना बेटा, हु इज मोर स्टेबल? पीबी को लाइफ में मौका मिलेगा तो वो क्या बनना पसंद करेगा, +2 या +4? +2. तो मतलब ये +2 में तो वो ऑलरेडी स्टेबल है ना बेटा, तो +4 बनेगा क्या? नहीं. तो देखिए लिखा भी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट is the reluctance of s electron to unpair themselves and take part in covalent bonding. As you go down the group, stability of +2 oxidation state increases and +4 decreases due to inert pair effect. Therefore, PbCl2 will not become Pb +4. Understood now? Right? ओ Yeah. जोया बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। Then कहाँ पर गया? So और are we not done with the chapter still? नो बेटा, आप लोग को और करना है बेटा इसमें, बिकॉज एक्चुअली बेटा दे हैव गिवन पीरियोडिक टेबल। नाउ बेटा आई विल टेल यू, देयर वाज वन चैप्टर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, दे हैव रिमूव्ड फ्रॉम योर बुक, बट दोस कॉन्सेप्ट आर हियर इन दिस। ओके, आई विल स्टॉप द क्लास, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड, बट आई एम जस्ट, मैं खाली अभी अभी ये जो कॉन्सेप्ट किया ना उसका खाली मैं क्वेश्चन आपको दिखाना है बस, और कुछ नहीं। वी आर नॉट, तो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेक 2 क्लास एक्स्ट्रा फॉर यू ऑल। हो जाएगा बेटा इन दैट। अच्छा मेरे को बता, इसमें सेकंड आई किसका ज्यादा होगा? सोडियम का बेटा 281 है ना बेटा, मैग्नीशियम का कितना है? 282। सोडियम में से एक निकाल देगा तो वो ऑक्टेट हो जाएगा ना बेटा, तो सेकंड आई ऑफ सोडियम विल बी मोर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्लियर ना? बिकॉज इट हैज अटैच्ड ऑलरेडी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आई जस्ट वांट टू डू दैट इनर्ट पेयर वाला, और एक क्वेश्चन है बेटा उसमें। बेटा इन स्कूल दे गो रैंडमली, ये सब कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया भी नहीं होगा बेटा, बस दे माइट हैव टोल्ड चैप्टर ओवर। बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस ना इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से। कहाँ यार ये क्वेश्चन, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार वापस, कहाँ पर है? एनीवेज दे हैव नॉट गिवन हियर, बट दैट क्वेश्चन इज देयर। हाँ बेटा, एनीवेज इनर्ट पेयर वाला हो गया बेटा अच्छे से। अच्छा एक खाली लास्ट पार्ट, आई विल टेक 2 more minutes, दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला कहाँ गया?
आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम इज मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आयनिक रेडियस कब छोटा होता है? इफ चार्ज मेरा बढ़ेगा। अरे बेटा, इफ आई इंक्रीज माई चार्ज आयनिक रेडियस विल बी लेस ना। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन क्रोमियम ऑन दिस। एक पोटेशियम का +1 होता है तो 2 का कितना होगा? +2। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना होगा? -8। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ क्रोमियम इन दिस? +6 ना। अरे यार, ये K2Cr2O4 दिया ना बेटा। 1 potassium is +1, so 2 का +2, एक का -2, तो it is -8, so it will be how much बेटा? +6 ना। इसमें कितना होगा? 1 fluorine is -1, here it is -3, so chromium +3. +3। 1 का -2, so it is -4, so this will be +4 or not? Yeah. Here it is -1, so -3, so +3. Where chromium is having maximum charge? +6. First one, +6. Greater the charge on cation, smaller is its size। देखा? तो ये तेरा आंसर हो गया बेटा। Clear? Okay, so I'll end class for today. I'll tell you, beta, what I have to do with you all in this chapter. I'll tell you, I have to do almost everything I have done, beta, almost. But then to beta will complete. हाँ, ये Lewis acid और ये सब मैं तुमको बता दूंगा बेटा next class में. Okay? Okay, sir. चलो, bye bye. Thank you. Bye. I'll Thank share you. the recorded video.